मान लीजिए कि मैं 10 मिनट के 10 सेकंड के बाद करूँ ना। सर रेडी रेडी। 10 सेकंड के बाद। Live started. Hello everyone, I am Dr. Neerav Vasavada, physical education teacher and coach, Delhi Public School, Bhopal, Ahmedabad. I welcome you all in our session called Fitness 24/7. Today we are going to discuss about some fitness activities and general exercises in this session. I request you all to be ready to click the screenshots if you like any exercise, and if you want to follow the session and you want to join yourself, you can click the screenshots. I have my colleague, friend and co-teacher Dr. Bikash Singh Rawat with me. We are going to discuss about some fitness activities and general motor ability parts. First of all, we have to understand the fitness of ourselves. As you all know, staying at home for an unexpected period can easily make a person lethargic and unhealthy. This is why it is important to adopt a home workout in your daily schedule. A third of humanity is now under lockdown. This time is very crucial to minimize the spread of COVID-19. But the question is, what impact it will have on health and well-being of a human being? So many researches have been done. Research shows that being sedentary is bad for your health and mental health also. So staying active during this difficult time is more important. Being physically active helps lower your blood pressure and cholesterol and can significantly reduce the risk of heart disease, strokes, and diabetes. It also helps in maintaining mass and bone density. Now I request Dr. Bikash Singh Rawat, who is my fellow colleague, to make us understand the meaning of exercise and importance of fitness. Dr. Bikash Singh Rawat, please. Thank you, Neerav sir. I welcome you all for attending this webinar organized by Delhi Public School, Bhopal, Ahmedabad. First of all, we have to understand why we have to do exercise. संस्कृत में अपने उपनिषदों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने शरीर को इस्तेमाल करना पड़ता। इसके लिए उसका स्वस्थ होना, पूरे सुचारू रूप से काम करना बहुत जरूरी है। So for that, we have to be physically fit. Then only we are able to do any kind of work. So let us understand what is physical fitness. हर किसी का अलग अलग होता है, whether it is a housewife, a man going to work office, a sports person, a teacher, a fitness freak. Everybody has its own physical fitness. So let us understand what is physical fitness. The ability to carry out daily routine work without getting tired and having reserve of energy to do work suddenly placed on him. इसका मतलब कि आप जो दिन भर में काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपका जो डेली रूटीन है आप वो तो अच्छी तरह कर रहे हो। उसके अलावा अगर सडनली आपको कहा जाए कि आज आपको ये भी करना है एक्स्ट्रा और आप बिना थके वो काम कर सको, इट मीन्स दैट यू आर फिजिकली फिट टू दैट एक्सटेंट। नीरज सर, जैसे आप पहले स्पोर्ट्स खेलते थे जी, तो आप रोज के 5 राउंड लगाते थे, बराबर? जी सर। किसी दिन आपके कोच ने बोला कि आपको आज 5 की जगह 6 राउंड लगाने जी, तो आपको लगा सकते थे या तकलीफ होती थी? देखिए क्या होता था, जब स्टार्टिंग में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में आए तब ये एक टाइप का लोड था, लेकिन धीरे धीरे रूटीन एक्सरसाइजेज शेड्यूल के साथ करने के बाद वो हमारे लिए एक हैबिट बन गई। तो यही मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 5 की जगह अगर आप 6 राउंड लगाओ और आप वो ना थको, देखो अगर आपका कोच अगर आपको 7 राउंड बोले तो जाहिर सी बात है कि कोई भी थकेगा क्योंकि उसका रोज का रूटीन नहीं है। करेक्ट। थोड़ा सा ज्यादा वर्क अगर आपको दे और आप बिना थके वो काम करें, इट मीन्स यू हैव सम मोर फिजिकल स्टैंडर्ड देन डूइंग अ रूटीन डेली वर्क। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज उस फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने में, मेंटेन रखने में मदद करता है। तो
we must understand what is exercise. Exercise is a part of physical activity. ठीक है, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका फिटनेस बढ़ेगा, पर उतना नहीं बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज का मतलब कोई भी प्लान तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हो, वो आपकी बॉडी की किसी एनी पर्टिकुलर पार्ट की कंडीशनिंग करेगा, जिससे आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा. आप जिम में जाते हो, आप बाइसेप्स कर्ल्स करते हो, आप एक बार करोगे तो आपका बाइसेप्स नहीं बढ़ेगा, उस मसल्स का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा. आपको रिपीटेटिवली उसको 10 से 15 बार करना पड़ेगा, उसके स्टेप डिवाइड करने पड़ेंगे. चाहे आप रनिंग करने गए, ग्राउंड पे गए, आप 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, आपको रिपीटेटिवली यू हैव टू रिपीट दैट मूवमेंट. सो इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन कि किसी भी बॉडी पार्ट का रिपीटेटिव और किसी स्ट्रक्चर्ड प्लान तरीके से अगर हम उसका यूज करें तो हमारा फिटनेस लेवल और ओवरऑल हेल्थ वो बढ़ती है. नीरव सर, अभी तो क्या है, अब सब लॉकडाउन से धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं, मगर फिर भी अननेसेसरी चीजों के लिए हम बाहर नहीं जा सकते जी. तो आपको क्या लगता है कि हम किस किस प्रकार की एक्सरसाइज या रनिंग या जॉगिंग कुछ ऐसा कुछ घर के अंदर लिमिटेड एरिया में कर सकते हैं? जी सर, बेशक. Especially during this lockdown period when we are not able to go out and socialize with the gym equipment in gym environment, in the garden, and as well as in the sports arena. So I especially suggest some of the normal stretching exercises for half an hour or 1 hour, some cardio exercises which we can do without gym equipment, without any equipment at home, and some of the sports activities like badminton, indoor swimming if we have, then some of the sports activities like other activities like chess, table tennis if you have table tennis table at home. Special activities which we can design for our family also. My suggestion is to being physically fit. My special suggestion for everyone to involve themselves, involve ourselves in some of the activities which will give us some strength, some flexibility, and some body movements. Now, if we want to get involved in some of the physical fitness activities, we must know that what are the main components of physical fitness. So I request Dr. Bikash Singh Rawat to share main components of physical fitness with us. Dr. Thank Bikash you very Singh much, sir. Thank you very much, sir. I always ready to explain these components. जी. I love this component because I am a fitness freak. तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों को भी जो 5-6 जो मेन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ना, लोगों को मालूम पड़े, ताकि वो उनको डेवलप कर सके और फिटनेस बढ़ा सके. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि लोग 2 तरीके के लिए एक्सरसाइज करते हैं, या तो फिटनेस रखना चाहते हैं, दूसरा दे वांट टू कम्पीट एनी ऑफ द टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन. Correct. पर वो दोनों चीज को करने के लिए यू शुड हैव टू फोकस ऑन 5 physical components which are very important. जी. First, I will give the names: strength, endurance, flexibility, agility, and speed. देखिए ये 5 टॉपिक इतने वाइड है, इतने ब्रॉड है ना, एक छोटे सेशन में इसको समझा पाना बहुत मुश्किल है. करेक्ट करेक्ट. पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसका डिफाइन करके आपको बता सकता हूँ कि क्या है. देखिए, स्ट्रेंथ है, जैसे अभी आप बैठे हैं, अगर आपको अपने सर पे ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना हाथ उठा के ऊपर सर तक ले जाना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन योर मसल्स, बोन्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू लिफ्ट योर हैंड अप एंड कीप इट ऑन योर हेड. अगर आपके हाथ के मसल्स में, शोल्डर्स में, एल्बो जॉइंट में, जितने में सब में अगर स्ट्रेंथ नहीं हुई तो आप उसको उठा नहीं सकते हाथ को और सर के ऊपर. इसका मतलब कि किसी भी चीज को करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ. करेक्ट. अब हर, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हाउसवाइफ का फिजिकल फिटनेस अलग, ट्रेनर का अलग, उसका अलग, तो उस हिसाब से आदमी को फिटनेस, अपना स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है. सेकंड इज एंड्योरेंस. देयर इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन बिटवीन पीपल्स अमंग स्टेमिना एंड एंड्योरेंस. Stamina is always associated with the horse. Correct. In terms of human being, endurance, the word is used. Endurance means कि आप कोई भी काम कितनी देर तक बिना थके कर सकते हैं. ड्यूरेबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पे. हाँ, मतलब आपको, जैसे आपको रनिंग करना है, 1 राउंड मारा, आप थक गए, ठीक है, इसका मतलब आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है एंड्योरेंस की, वो सिर्फ 1 राउंड की है. जी.
आपकी 1 राउंड की है, मेरे 2 राउंड की है, जो लोग सुन रहे हैं उनकी 3 राउंड की है। मतलब इट डिपेंड्स। तो यू हैव टू इंक्रीज इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। वो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज वेरी मच टू अडैप्ट द एनवायरनमेंट। करेक्ट। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे तो आपका ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर है, उसको अडैप्ट करता रहेगा और ऐसे आप आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यू हैव बीन सीइंग जिम्नास्टिक, एक्रोबैट्स, कितने सारे अपने हाथों को, योगा वाले अपने हाथ को इधर से इधर, पैरों के नीचे से कहां कहां से मोड़ के डालते हैं। इट जी शोज द रेंज ऑफ द मोशन, मूवमेंट जो उनका है वो कितना है। जैसे कभी कोई फील्डर कैच करने के लिए कूदता है तो उसको बैक में जर्क आ जाता है, इट मींस दैट उसका फ्लेक्सिबिलिटी उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि वो जंप वाला, क्योंकि सबके सब जंप मार के अजय जडेजा जैसा कैच नहीं करते, जी करेक्ट, सही है। क्योंकि उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको वहां रोकती है। Similarly, agility. Agility means you have been seeing the football match, hockey match, basketball match. How frequently, how speedily the players are changing their movement from one direction to another. This shows how agile they are, how quickly they can move their body from one direction to another direction with the speed. तो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कितनी उन्होंने स्ट्रेंथ, वो फिटनेस पे ध्यान रखा होगा कि वो इस लेवल पे पहुंचे। हर किसी जी। के बस की बात नहीं तो हर कोई फुटबॉल प्लेयर उस स्टैंडर्ड पे पहुंच सकता है। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज स्पीड। स्पीड का सबसे अच्छा उदाहरण हुसैन बोल्ट। भाई आपको कम से कम टाइम में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कितनी जल्दी आप पहुंच सकते हो। अभी हमको कोई बोले कि भैया आप 9.56 सेकंड में आप 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करो, तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट एट दिस एज। करेक्ट, वी आर नॉट एबल, वेरी नाइस। वी कैन रीच टू 12 सेकंड और 13 सेकंड, पर वो भी कब, जब हम रोज प्रैक्टिस करें, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, रोज एक्सरसाइज करें, देन ओनली वी विल बी एबल टू रीच एटलीस्ट 12। उतनी हाई लेवल की फिटनेस की बात हम नहीं करें, पर एटलीस्ट हमको इतनी एक्सरसाइज, इतना वर्कआउट करना चाहिए कि वी शुड मेंटेन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विच विल हेल्प इन आवर फ्यूचर लाइफ। अभी तो ठीक है, एट प्रेजेंट तो ठीक है, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वी हैव टू कोप अप विद मेनी डिजीजेस, इलनेसेस, जैसे हार्ट की डिजीज हो गई, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया, ओबेसिटी हो गई। तो अगर हम ये 5 कंपोनेंट्स को मेंटेन करते हैं जी तो हमारा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहता है। सही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपना फिटनेस लेवल बढ़ा के रखें तो फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, सिंपल फिटनेस उससे भी। विकी सर ने बहुत अच्छी बात बताई और नीरव सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई। मेरे वेबिनार पे आए हुए फेसबुक के मेरे डीपीएस के दर्शक और साथ में जूम में जुड़े हुए दर्शक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं टाइम पे नहीं जुड़ पाया था। सो आप सभी का मैं वापस एक बार स्वागत भी करता हूँ। और विकी सर ने और नीरव सर ने जो हमारी शुरुआत की है, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और अगर आप लोग अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, if you try to find out your answer within yourself, that do I want to be fit 24/7, because that is a mantra of life, that is a wish of life, that is an aspiration of life. Do we think that our body is a temple? जब तक हम हमारे शरीर को एक मंदिर, एक गिरजाघर, एक जगह जिससे पवित्र और पाक रखने की जरूरत है वो नहीं समझेंगे, तब तक जो नीरव सर और विकी सर जो हमें बता रहे हैं वो काम में नहीं आएगा। और 3 शब्द है, अलग अलग भाषा में उपयोग किए गए, बट वो तीनों शब्द एक ही मैसेज देते हैं। डू वी वॉन्ट टू कीप अवर सेल्फ फिट के लिए शू मारे इच्छा छे, गुजराती में अगर हम बोले शू मारे इच्छा छे, हिंदी में बोले क्या मेरी वो इच्छा है, और अगर इंग्लिश में बोले डू आई विश दैट, विश, दैट इच्छा, दैट ख्वाहिश इन उर्दू, should have a khwahish that I want to be fit, I want to be fighting spirit person, and this spirit of fighting with the age, beyond the age, will make you fit and fight against any odd situation. अगर आज की तारीख में हम देखने जाए तो लॉकडाउन में इतने टाइम से हम लोग घिरे हुए हैं, अभी थोड़े लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला है, हम बाहर गए हैं। सो फिटनेस इज नॉट ओनली बॉडी, फिटनेस इज मेंटली, फिटनेस इज इमोशनली ऑल्सो। घर में रह के हम हमारे परिवार के साथ कितना इमोशनली फिट रहते हैं, कितना मेंटली हम इस परिस्थिति का सामना कर पाते हैं, वो सब के लिए एक ही वर्ड है, विश। यू शुड हैव, आई शुड हैव, वी ऑल शुड हैव अ विश दैट माय बॉडी इज अ टेम्पल एंड आई हैव टू मेक इट मोर एंड मोर प्योर so that I can sustain a good and healthy and happy life.
यस नीरव सर, विकी सर आपसे जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक। फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आने लगी है, बहुत सारे जी। लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सब हमें गुड इवनिंग बोल रहे हैं। आपकी नमस्कार बातें भी एवरीवन, नमस्कार। आपकी बातें भी उनको बहुत अच्छी लग रही है, फेसबुक की कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। सो हम हमारी बातें याद करके आगे बढ़ते हैं। जी सर। जी सर। अच्छा नीरव सर, जी सर। तो मैंने तो भी बता दिया कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है, एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके जी। कंपोनेंट्स क्या हैं। पर एक बात है सर कि अभी चलो लॉकडाउन में थोड़ी हमें रियायत मिली है, सो वी आर एबल टू गो आउट बट नॉट फॉर अननेसेसरी थिंग्स। करेक्ट। ठीक है। पर तो क्या है कि जिम्स तो अभी खुले नहीं हैं, गार्डन्स अभी खुले नहीं हैं, तो लोगों को एक्सरसाइज करनी है अगर हो घर पे, तो जी। कैन यू सजेस्ट एनी प्लान या प्रोग्राम जिससे लोग घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सके? Yeah, definitely, sir. I have planned some slides for the audience also, and I'm going to share the screen with you, our live audience. As we all know, staying home will give you some more stress. So better we follow these exercises. I have planned a special group of exercises for 30 minutes. And here is the terms: 5-minute warm-up routine, 10-minute home cardio workout, 10-minute abs workout, 5-minute cool down, and that is called stretching exercise in normal condition mein. And a total amount of exercise is 30 minutes. Now it depends on you how you are performing the exercises. In between the exercises, here is the first slide: 5-minute warm-up routine. See, in between, if you can do these exercises continuously, then it is good. बट अगर आप 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज के बीच में अगर गैप लेना चाहते हैं 10 to 15 या 20 सेकंड्स का, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप रूटीन वर्कआउट के अंदर रेस्ट के साथ किसी एक एक्टिविटीज के साथ दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट इज गुड। It will give you more strength to perform second activity. After that, if after you perform any first activity, in the second activity it will give you more strength and more stamina. Sometimes it helps in boosting the energy also. बेटर रहेगा आप 2 एक्टिविटीज के बीच में कोई एक फिक्स 10 या 15 या 20 सेकंड का रेस्ट फिक्स करें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, फर्स्ट एक्सरसाइज है मार्च ऑन द स्पॉट। Start off marching on the spot and then march forward and backwards. Pump your arms up and down in the rhythm with your steps. This is very simple exercise, but it is good. Now second is hill dig. Aim for 60 hill digs in 60 seconds. In this exercise you have to dig the hills like a palm. Place alternate knees to the front, keeping the front foot pointing up, and punch out with the each leg hill dig. Third is knee lift. This is also aiming exercise: 30 knee lifts in 30 seconds. Alternatively, both knees and both hand you have to use. इस एक्टिविटी के बारे में आपको बहुत सिंपल चीजें ध्यान में रखनी है। दोनों नीज का हाथ और हाथ के साथ टेपिंग में यूज करना है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये कंटिन्यूस एक्टिविटीज 5 की 5 एक्टिविटीज कंटिन्यू मोशन में करें। फोर्थ इज शोल्डर रोल्स। सिंपल स्ट्रेचिंग के साथ शोल्डर रोल्स आपको परफॉर्म करना है, वो भी 2 सेट 3 सेट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिपीटेशन सेट कर सकते हैं। फिफ्थ है नी बैंड्स। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नी बैंड्स एक्सरसाइज बेसिकली हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके साथ पर शेयर कर रहा हूँ। नीरव सर, Yes, sir. आपने जो अभी स्लाइड्स दिखाई है, जी इसमें जैसे मेरे को अपना कुछ और ऐड करना हो, जी जी तो मैं अपना भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि कर मैं सकते तो हैं क्या सर, कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, ये मैंने मेरे हिसाब से अपनी एक्टिविटी डिजाइन की है। अच्छा अच्छा। आप अपने हिसाब से आपकी कोई भी एक्टिविटीज आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये होम कार्डियो वर्कआउट मैंने डिजाइन किया है। ओके। ये नॉर्मल कार्डियो एक्टिविटीज है जो विदाउट इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं। जिम में जाने के बाद ट्रेनर के साथ अगर कोऑर्डिनेट करके आप जो भी कार्डियो एक्टिविटीज कर रहे हैं ट्रेडमिल पर या तो और कोई एक्टिविटी इक्विपमेंट्स के साथ, उसके बदले अभी के टाइम में अगर आपके पास जिम फैसिलिटीज घर पे हैं तो वो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो ये भी वन टाइप ऑफ कार्डियो एक्टिविटीज है जिसमें मैंने दिखा है यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, दैट इज कॉल्ड रॉकेट जंप्स। 2 सेट्स ऑफ 15 to 24 रिपीटेशंस। स्टैंडिंग पोजीशन में आपको सीधा हाथ ऊपर लेके दोनों पैर पर जंप करने हैं। सेकंड इज स्टार जंप। इसमें पैर को आपको
दोनों वाइड रेंज में खोलना है, सेम रॉकेट जंप की तरह, सेम 2 सेट्स एंड 50 to 24 रिपीटेशंस आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। थर्ड इज स्क्वाट्स, वेरी सिंपल स्क्वाट्स एक्टिविटीज जो हमने पहले भी आपको अगली स्लाइड में बताई थी। फोर्थ एक्सरसाइज इज स्टेप बैक्स, बेसिकली ये रिदमिक एक्सरसाइज है, म्यूजिक के साथ भी आप कर सकते हैं और बहुत मतलब अच्छा रहेगा। मतलब नाचते नाचते गाते गाते वर्कआउट जी भी। करेक्ट, जी करेक्ट, इट्स एन एरोबिक एक्टिविटी आल्सो। आप ओके आप म्यूजिक के साथ अगर घर पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग फैमिली मेंबर के साथ डांस वगैरह कुछ भी करते हैं, तो ये उस टाइप की एक्टिविटी है जिसमें आप पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ इज बर्पी, 2 सेट ऑफ 15 to 24 रिपीटेशन। 5 स्टेप इसका सिंपल मैंने दिखा है यहाँ पे। स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, देन अगेन स्टैंडिंग पोजीशन एंड जंप। जंप के साथ लैंडिंग है आपका। ये पूरी एक एक्टिविटी हमने इसी हिसाब से डिजाइन की है कि आपका वोल बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व हो सके। नाउ 10 मिनट एब्स वर्कआउट, खास करके हमारा जो भी ऑडियंस अभी देख रहे हैं, दोज हु आर बल्की नाउअडेज, क्योंकि आप हमको पता है हम काफी सारे दिनों से विदाउट एनी एक्टिविटी बाहर गए हुए बैठे हैं, तो हो सकता है 50% से ज्यादा लोगों ने अपनी चर्बी बहुत अच्छी तरह जमा ली होगी। सो आई स्पेशली सजेस्ट दिस वर्कआउट फॉर एवरी डे। those who are bulky and those who are having flat stomach, ये स्पेशल एक्सरसाइज हमने उसके लिए डिजाइन की है। नेम इज एब्स वर्कआउट। नाउ फर्स्ट इज स्टमक क्रंच, सेकंड इज ओब्लिक क्रंच, थर्ड इज प्लैंक, फोर्थ इज साइड प्लैंक एंड फिफ्थ इज स्टमक क्रंच विद लेग रेज। अब ये सिमिलरली ये पांचों की पांच एक्टिविटीज जो है वो स्टमक के ऊपर ज्यादा लोड दे रही है। एब्स वर्कआउट के लिए ये डिजाइन हुई है और हम एब्स की जो कोर कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की हम ट्राई करेंगे। Now in the last, I have designed 5-minute cool down stretching exercises. हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रूटीन वर्कआउट या तो स्पोर्ट्स या तो गेम्स या तो कोई भी एक्टिविटी करने के बाद बॉडी एकदम हमारा जो है वार्म रहता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहता है। उसको स्लो करने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए हमको कुछ एक स्ट्रेचिंग या तो कूल डाउन एक्टिविटीज करनी जरूरी है, अदरवाइज दैट एक्टिविटीज विल गिव यू इंजरीज इन योर मसल्स। सो यहाँ पे मैंने दिखाया है ऐसे बटक स्ट्रेच फर्स्ट है, सेकंड इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, थर्ड इज इनर थाई स्ट्रेच, फोर्थ इज काफ स्ट्रेच एंड फिफ्थ इज थाई स्ट्रेच इन सुपाइन पोजीशन। अब ये पांचों की पांचों एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हाथ, शोल्डर, थाइज, काफ मसल्स, बैक एंड होल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हमने रखा है। ये एक्टिविटीज को आप जितने हो सके उतना मैक्सिमम टाइम के लिए करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। So I specially prefer 5 to 10 to 7 minutes at least every day. अगर आप कोई भी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद 5 से 7 या तो 10 मिनट मैक्सिमम आप करिए। अगर इंजरीज का चांसेस ज्यादा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट है, तो ये एक्सरसाइज का अमाउंट जो है वो आप बढ़ा सकते हैं और इसको रिपीटेडली 2-3 बार भी परफॉर्म कर सकते हैं और वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर कोई वर्कआउट शेड्यूल आपका कंप्लीटली आधे से ज्यादा घंटे के लिए आपने किया है, उसके लिए ये बेस्ट है। So again come to the point, जैसे मैंने बताया रूटीन वर्कआउट स्ट्रेटेजीज जो है वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है आप किसी एक वर्कआउट को ही फॉलो करें, बेटर रहता है हम। जी सर। अभी आपने ये बता तो दिया कि प्रोग्राम क्या है जी। अभी, क्या लोगों को समझ में तो आया नहीं होगा कि सिर्फ देखने देखने से फोटो से पिक्चर का है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसका। ठीक है सर। बीके सर एक मिनट आप वीडियो दिखाओ। उसके पहले हमारे जूम पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं कि ये पीपीटी बहुत अच्छी है, क्या ये हम लॉकडाउन के टाइम में कर सकते हैं? अजय पटनायक साहब हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि एवरीडे 30 मिनट वॉक इज इनफ, लॉकडाउन में हम उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर हो सकते हैं? लॉकडाउन में ये एक्सरसाइज होनी चाहिए या लॉकडाउन के बाद भी? और एवरीडे जैसे अजय पटनायक साहब पूछ रहे हैं 30 मिनट वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इज इनफ, तो उसके लिए क्या जवाब होना चाहिए? विकास सर। हाँ सर, पटनायक सर, वेरी गुड इवनिंग। देखिए सर, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वॉकिंग। 1 घंटा आधा घंटा अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो हार्डली आपका 150 कैलोरीज बर्न होता है। अब आपका डाइट कितना है, आप कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, आपकी एज क्या, आपकी रनिंग स्टाइल क्या है, जॉगिंग स्टाइल क्या है, वॉकिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, आप सुबह आधा घंटा कर रहे हैं खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, तो वो उस दिन के लिए आपने कितना कैलोरीज खाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
आप वॉकिंग अगर स्पीडली करते हैं तो वो आपके ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, अगर आप स्लो करते हैं तो कम करेगा। हाँ, अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, रोज वॉकिंग कीजिए, लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, फिटनेस तो हमें ऑल द टाइम मेंटेन रखनी है। जी तो आप लॉकडाउन से उसका कोई लेना देना, दिस मीन्स फिटनेस 24/7, देयर इज नथिंग टू डू विद लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन तो हम घर का बता रहे, दिस यू कैन डू एट पार्क, गार्डन, बाय वॉकिंग ऑन द रोड और क्लब्स, वेर एवर यू वांट टू डू। ये स्पेशली हमने इसके लिए किया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू गो आउट, तो घर पे हम कैसे कर सके उसके लिए आप वॉकिंग इज एवरी टाइम गुड, सबसे अच्छा है वॉकिंग। अगर उसमें आप वेट के साथ करें तो और भी बढ़िया है। 30 मिनट मॉर्निंग, टोटल इट इज 1 hour अकॉर्डिंग टू WHO, 150 मिनट्स इन अ वीक एवरीबॉडी शुड डू वर्कआउट। तो अगर आप इसको बाइफरकेट करते हैं तो 30 days फॉर 4 days मीन्स आपका 5 days हो गया, 150 मिनट, फिर भी आपके पास 2 दिन रेस्ट पीरियड बचते हैं। करेक्ट। तो बहुत अच्छी बात है, आप एक टाइम की जगह 2 टाइम कर रहे हैं, आपने बाइफरकेट किया हुआ है दोनों 1 घंटे को। तो लॉकडाउन से कुछ लेना देना नहीं, फिटनेस शुड बी 24/7। आपको कोई भी टाइम फिक्स करके एटलीस्ट 40, आई रिकमेंड 40 मिनट्स पर डे विद 1 day रेस्ट इन अ वीक। थैंक यू सर। फटाक से आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। यस, वी कैन कंटिन्यू आवर प्रेजेंटेशन। विकी साहब, आप वीडियो दिखाने वाले थे, तो मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं वो वीडियो देखूं। काश आपका जो आप जो रोज फेसबुक पे आपके मैंने वीडियोस देखे हैं, जिस तरह से आप फिट रहते हो, वो वीडियो मुझे देखना है। सर, वीडियो दिखाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि एक्सरसाइज करने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो डाउन होता है। इट वेरी मच हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। आप फिजिकली, मेंटली आप बहुत अच्छा फील करते हैं, और अगर आप अच्छा फील करते देन ओनली यू विल बी एबल टू डू गुड वर्क। आपका इससे इंटरनल ऑर्गन फंक्शनिंग प्रॉपर होता है, आपका कार्डियो मसल्स, कार्डियक मसल्स, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, कार्डियक मसल्स पंप्स होते हैं, तो उसमें जो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है एक्सरसाइज करने के। हम तो मिनिमम 30 मिनट्स बोल रहे हैं, आप 40 मिनट्स 50 मिनट पर डे करें, दैट इज वेल एंड गुड। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क नीरज सर टू प्लीज प्ले द वीडियो। श्योर सर। वीडियो के बाद एक और क्वेश्चन आया है हमारे जूम पे। लोग नंदिनी मेहरोत्रा पूछ रहे हैं, ऑब्लिक क्रंच हम कर सकते हैं और वो क्या है, वो हमें बताना है, बट पहले वीडियो देख लेते हैं जी। यस सर। सो नाउ वी विल सी अ वीडियो। इसमें फर्स्ट वीडियो इज फॉर द बिगिनर पीपल्स, जो जिन्होंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, और इंटरमीडिएट पीपल्स। एवरी एक्सरसाइज फॉर द बिगिनर शुड बी डन फॉर 20 seconds with 10 second रेस्ट इन बिटवीन। ऐसा करने से आपका एक सेट 5 मिनट चलेगा, जिसमें अंदर मैंने 10 एक्सरसाइज बताई हुई है। ऑल द एक्सरसाइज इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरी मसल्स, whether it is your quadricep muscles, hamstring muscles, calf muscles, shoulder muscles. So the sets and the number of count, it depends all individually. मतलब हर किसी का फिटनेस लेवल अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से इसके नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ सेट्स सेट कर सकते हैं। इसमें आपकी जंपिंग भी आ जाएगी, आपकी वॉकिंग, जॉगिंग, किकिंग, ऑलमोस्ट एवरी बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज जो है वो इसमें आ जाती है। तो आप देख सकते हैं 30 सेकेंड एक्सरसाइज, देन 10 सेकेंड रेस्ट फॉर इंटरमीडिएट, 20 सेकेंड एक्सरसाइज, 10 सेकेंड रेस्ट। इसका आप 4 राउंड करें, 5 राउंड करें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू डू इट, नंबर ऑफ काउंट यू वांट टू डू इट, सो इट ऑल डिपेंड्स। इसी तरह मैंने जो एडवांस पीपल्स है, एडवांस जो रोज रेगुलर एक्सरसाइज करते थे पहले लॉकडाउन से पहले, पर अभी इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बाहर नहीं जा सकते, लिमिटेड एरिया में कैसे एक्सरसाइज करें, तो इधर मैंने भी बहुत लिमिटेड एरिया में ये वर्कआउट करके आपको बताने की कोशिश की कि आप लिमिटेड एरिया में भी यू कैन डू वर्कआउट। नाउ वी विल सी द सेकंड वीडियो which an intermediate, those who want to proceed to advanced level, and advanced people, those who want to do exercise at home in a limited place, can do this workout. It includes the spot running. I've also mentioned the side of the video कि आप कितनी देर और कैसे कर सकते हैं।
जैसे आपने अभी देखा, इसमें जो इंटरमीडिएट पीपल्स है, दोज हु वांट टू एडवांस टुवर्ड्स द हायर लेवल, तो वो लोग इसमें रेस्ट पीरियड ले सकते हैं, बट दोज हु आर एट एडवांस लेवल, उन लोगों को रेस्ट की जगह पे जॉगिंग करनी। करेक्ट। मतलब विदाउट रेस्ट यू हैव टू परफॉर्म दिस होल सेट ऑफ एक्सरसाइज। तो आपका क्या, आपको मालूम पड़ेगा कि आफ्टर लॉकडाउन यू आर एट विच लेवल, आपका डिक्रीज हुआ है लेवल फिटनेस का, या बढ़ा है, या मेंटेन रहा है, तो यू कैन डिसाइड। जैसे मैं हूँ, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, तो मैं कभी भी वर्कआउट मिस आउट नहीं करता हूँ। हार्डली अगर हो रेस्टिंग पीरियड या चीट डे मेरा होता है तो इट्स ओनली ऑन संडे, जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, क्योंकि सम टाइम आई हैव टू गिव माय फैमिली आल्सो एट दैट टाइम। तो मैं एटलीस्ट, हाँ जी सर। सर आप खत्म कर लीजिए, इट्स ओके। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मैं जितना हो सके एटलीस्ट 1.5 आवर पर डे वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। उनमें सर आपका एक क्वेश्चन था ओब्लिक Yes. क्रंच के बारे में, आप वो रिपीट कर Yes. सकते हैं प्लीज? हाँ, नंदिनी मेहरोत्रा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ऑब्लिक क्रंच एंड हाउ कैन वी डू इट। ओब्लिक क्रंच के लिए देखिए, बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल इसका कोर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मल प्लैंक एक्सरसाइजेज हम लोग यहाँ पे हमारे बच्चों को, डीपीएस के बच्चों को ग्राउंड पर भी करवाते हैं। एंड आई थिंक नंदिनी मेहरोत्रा इज इन हैंडबॉल एंड शी इज माय स्टूडेंट आई थिंक। So I suggest everyone can do this oblique crunch, everyone can do, but आपको धीरे धीरे इसको इंक्रीजिंग स्पीड पर लाना है, आपको धीरे धीरे इसमें मास्टरी आ सकती है। नॉट एट ए टाइम यू कैन परफॉर्म फॉर 15 to 20 और 25 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे आपको किसी एक एक्टिविटी में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल क्रंचेस जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 एक साथ में कर सकते हैं। जो विदाउट एनी एक्सरसाइज जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो रूटीन में स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज उनके लिए बात हो रही है। बट 1 साल 2 साल किसी एक्टिविटी में निकालने के बाद, एक मास्टरी आने के बाद आप उसको एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो ये ओब्लिक क्रंच का भी ऐसा ही है, आप धीरे धीरे इसमें मास्टरी ला सकते हैं, ना कि एक साथ में एक ही दिन में आपसे कुछ हो पाएगा। ओब्लिक क्रंच का और कोई भी साइडवर्ड क्रंच कोई भी हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, उसका यही एक माइनस पॉइंट है कि हम एक साइड कोई भी लेफ्ट या तो राइट कोई भी एक साइड ज्यादा लोड देते हैं और एक साइड कम करते हैं, और वही उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो हमको बढ़िया, आई थिंक नंदिनी मेहरोत्रा को जवाब मिल गया होगा। साथ में फेसबुक पे पूनम फोगट जी पूछ रहे हैं, देयर इज अ नेक मसल स्ट्रेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दैट। पूनम फोगट पूछ रहे हैं कि नेक स्ट्रेन हो जाता है तो हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ इट। सो विकास सर, अगर आप बता पाए। देखिए सर, कोई भी मसल्स को अगर एक्सरसाइज के टाइम पे इंजरी हुआ है तो बेस्ट वे इज टू गिव रेस्ट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। करेक्ट। उस मसल्स का 48 आवर्स तक कुछ ना करें, सिर्फ आइसिंग करें। ओनली अप्लाई आइस आफ्टर एवरी 2 आवर्स, 20 मिनट तक आप उसको आइसिंग करें। जब 48 घंटे हो जाए उसके बाद उसको आप धीरे धीरे मूवमेंट शुरू करें, बिकॉज इट्स अ मसल इंजरी, इट विल टेक टाइम करेक्ट। रीगेन द स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ वीकिंग हो गया इसीलिए उसमें इंजरी हुआ है। तो आपको पहले 48 आवर्स तक तो सिर्फ आप उसको आइसिंग करें, हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद 20 मिनट तक। फिर 48 आवर्स के बाद उसका धीरे धीरे मूवमेंट शुरू करें, क्योंकि जब उसमें ब्लड फ्लो वापिस से शुरू होगा तो उसको वापिस से एक्सरसाइज मिलेगा और मसल्स को जो है स्ट्रेंथनिंग होगा, तो इट विल अगेन रिपेयर इन 4 to 5 days। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पूनम फोगट जी को जवाब मिल गया होगा, बहुत सारे और दर्शकों को भी जवाब मिल गया होगा। यस, हम हमारा प्रेजेंटेशन जारी रखते हैं। आपके जो प्रेजेंटेशन है नीरव सर, विकी सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। So because sir, I also suggest you please share your experiences with our audience, that what kind of objects at home which we can use for exercise, as you are a fitness freak person and you are using dumbbells and barbells and so many equipments in the gym। हम लोगों ने देखा है, काफी सारे हमारे बच्चों ने भी देखा है कि आप काफी सारे एक्टिविटीज इक्विपमेंट के साथ जिम में और बॉडी बिल्डिंग के दौरान करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर आपने कौन से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो आपने यूज किए एज अ वेट, आप उसके बारे में भी बात करें प्लीज। अरे सर, मैं तो बता दूंगा, आपको बताना पड़ेगा। फिटनेस फ्रीक अकेला मैं नहीं हूँ, मैं तो बता दूंगा। आप क्या करते हो आपको भी बताना पड़ेगा एक शर्त पे, ठीक है। देखिए, जैसे मैं फिटनेस के पीछे बहुत पड़ा रहता हूँ। जिम में तो मुझे सब कुछ मिलता था। नाउ एट होम लगभग 55, 50, 60 लोग हैं, तो मैं मेरे घर पे जो भी चीज मिलती है ना, मैं उसे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ। करेक्ट, लाइक बट एक फिक्स टाइम है, आइदर इन द मॉर्निंग आइदर इन द इवनिंग।
नहीं नहीं, आप इक्विपमेंट के बारे में बताइए, हमको जानना ये है कि आप कौन से इसी देखिए, बहाने इसी इसी बहाने इन्होंने उनमें सर आई स्ट्रांगली सजेस्ट ये थियरी तो बाद में वो उनसे हमारे बच्चे और पेरेंट और हम लोग सीख लेंगे, यस यस बट यस यस बट वो अभी जो कर रहे हैं ना वो जानना जरूरी है हमारे लिए। विकास सिंह सर, आप बताइए हमें, आप घर के कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और इतने फिट रहे? बिकॉज फेसबुक पे बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, जूम पे भी बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि जी। आप लॉकडाउन में इतने फिट कैसे रह सकते हैं घर में इतनी कम जगह पे? देखिए सर, मैं गैस के सिलेंडर 2 हैं, मैंने उनको बांध दिया है एक रॉड के साथ। उससे मैं उसको सब कुछ, मतलब उससे मैं शोल्डर प्रेस भी करता हूँ, स्क्वाट्स भी करता हूँ, मैं उसमें काफ्स भी करता हूँ। आई एम यूजिंग खुद का ओन बॉडी वेट फॉर पुशअप्स, फिर शोल्डर पुशअप्स भी मैं बॉडी वेट से लगाता हूँ। मैं मेरा बैकपैक यूज करता हूँ केस पे एज अ बॉडी वेट यूज करता हूँ। मैं टॉवल से स्ट्रेचिंग करता हूँ, उससे बैक के मसल्स को वर्कआउट करता हूँ। मेरे पास जो वो फिनाइल का बॉटल नहीं आता हैंडल वाला, केटल बेल जैसा, जी उसको मैं केटल बेल की तरह से यूज करता हूँ। फिर मैं पानी की बाल्टी में, वो बाल्टी में पानी भर के उससे वर्कआउट करता हूँ। मैं वो चेयर पे डिप्स मारता हूँ। मतलब आप घर में जो भी बड़ा सामान या ऐसा सामान जिसको आप लिफ्ट कर सके, जिसको आप पुश कर सके, आप वो सारे सामान यूज कर सकते हो फॉर वर्कआउट। जी। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि भाई आपको वर्कआउट करना है तो करना है। देयर इज सेकंड ऑप्शन। मैं रोज 1.5 घंटा करता हूँ, तो मैं करता हूँ। मैं शाम को करता हूँ 8 से 9:30 बजे तक विद माय फ्रेंड। वो उनका भी लगभग 8 से 9 किलो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कम हो गया है। क्या बात है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। मैं दीवार पे कहीं पे भी लटक के वहां पे पुलअप्स कर लेता हूँ। तो फिटनेस फ्रीक होना बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड। सर करेक्ट। मैंने बता दिया कि मैं क्या क्या करता हूँ। नीरव सर, आपको Because पता sir, before we go ahead further, unme sir, I have also got one question from the audience. यस He is Abhinav Dwivedi and he is asking for any bicep exercise without gym equipment. अगर विकास सर उसके यस बारे में भी यस बताएं विकास तो सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस यस। और आपने अभी एक दो जवाब तो ऑलरेडी दे दिए। जैसे हितांशी पूछ रही थी, हितांशी भाटी पूछ रही थी व्हाट इज द बेस्ट टाइम, तो आपने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है। जी और आरवी राणा पूछ रहे थे कि वाओ सर यू लुक फिट आफ्टर द लॉकडाउन, तो उसका भी जवाब आपने दे दिया है कि लॉकडाउन तो घर के बाहर है, घर के अंदर लॉकडाउन नहीं है। हम चाहे बिल्कुल सही। तो फिट अंदर रह सकते हैं और हमारे आप अपने आप को हम फाइटिंग पोजीशन में बना सकते हैं। यस विकास सिंह, बिल्कुल सही। सर आप ये बताइए कि कैसे बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज की जाए? देखिए सर, आपका जो बैकपैक होता है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा वेट डाल दीजिए, चाहे पानी के डब्बे भर के डाल दीजिए, चाहे बड़ी बुक्स को डाल दीजिए, और जो उसका हुक होता है उसके अंदर एक रॉड को या लकड़ी को डाल के आप डबल हैंड बाइसेप्स कर सकते हैं। करेक्ट। या पानी की 1 लीटर की बोतल हो, दोनों हाथों में एक एक पानी की लीटर की बोतल को रख के आप उससे डंबल्स मार सकते हैं। मतलब आपको करना है, आपको तो ये है कि आप बैकपैक से करें, चाहे आप पानी की बोतलों से करें, या सिंपल एक टॉवल ले ले, टॉवल को एकदम स्ट्रेच ऐसा सोचिए। यू हैव टू कंसंट्रेट व्हाइल डूइंग यू आर लिफ्टिंग अ हेवी वेट। तो आपको उसको उस तरीके से टॉवल को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर बाइसेप्स को। Yes sir, now we are going for your question. Yes, ask. हाँ सर, मैं पूछ रहा था, मैं तो चलो कुछ भी यूज कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मुझे आप भी फिट ही लग रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि पेट वेट आ जाएगा आपका है? जी नहीं, वैसे यूजुअली मैंने तो अपना वर्कआउट रूटीन वर्कआउट 45 मिनट से लेके हाफ एन आवर तक का रूटीन मैंने सेट करके रखा है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि घर के रूटीन वर्कआउट जो है काम, उसमें से ही उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड तो स्पेशली मैंने मेरे बच्चे के साथ, आई हैव वन तूफान किड एट होम, एंड उसके साथ मैंने मेरा वर्कआउट डिजाइन किया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको, ये 3 या 3.5 मिनट की कोई क्लिप है, आप देखें और आप अपने अपने फीडबैक भी दें मुझे। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको कोई एक्टिविटी, अगर आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं, जिनके भी घर पे पेरेंट्स और बच्चे हमारे जो भी डीपीएस के हैं, अदर स्कूल्स के हैं जो अभी लाइव हैं, अगर छोटे कलीग उनके पास, उनके भाई बहन छोटे हैं, तो उनके साथ वो एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड आई सजेस्ट कि पेरेंट अगर हो तभी वो वर्कआउट और एक्टिविटीज आप करें, या तो फिर किसी एल्डर को आप साथ में रखें और एक्टिविटीज करें। अदरवाइज क्या होगा, इसकी इंजरीज भी बहुत सारी है। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये वीडियो एक्टिविटी आप देखिए मेरी जो अभी करंट में हो रही है। सॉरी, ये बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिलेंडर की बात की विकास सिंह जी। सर, तो हाँ सब लोग जी क्वेश्चन सर। पूछ रहे हैं सिलेंडर भरे हुए चाहिए या खाली होने चाहिए?
तो सब लोग अंदर अंदर भी जवाब दे रहे हैं कि सिलेंडर खाली होने चाहिए। मैं अपने दर्शकों को आई विल लाइक टू इन्फॉर्म ऑल अवर व्यूअर्स फ्रॉम जूम और फ्रॉम एफबी, नीरव सर और विकास सिंह सर दोनों फिटनेस फ्रीक है, दे आर ट्रेन्ड एंड दे हैव गॉट अ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो सिलेंडर के ऊपर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए, लेकिन पानी भरी हुई बाल्टी के ऊपर नजर जाए और उसके ऊपर से अगर एक्सरसाइज कर ले तो भी बहुत है। और जैसे अभी नीरव सर बच्चों के साथ एक्सरसाइज की जो बात बता रहे हैं, देखने में बहुत अच्छी लगेगी, बट हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, बच्चा भी हमारा है और सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ये हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन टाइम में अगर आप घर पे हो तो आपके बच्चों को भी फिटनेस का इंपॉर्टेंस मालूम पड़े, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करें और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाए। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, आपने जो बोला बच्चे फॉलो करते हैं तो इंजरी, बहुत बड़ी इंजरीज हो सकती है सर अगर हम केयरलेसनेस दिखाएं इन सब चीजों में। बहुत बढ़िया, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि उसमें वर्कआउट, बड़ौदा का कोई केस हो, दिल्ली का कोई केस हो, आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट कोई नॉलेज, तो आपको इंजरीज होने के बहुत चांस है और उससे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी बहुत तो सही बात है। ऑलवेज एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोई मेच्योर आदमी हो या पेरेंट हो घर पे, उसी के सुपरविजन में करना चाहिए। मैं भी, मेरे पास भी भरे सिलेंडर्स हैं बट आई नेवर यूज कि भरा हुआ सिलेंडर उठाऊं क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ डैमेज, डेंजर। करेक्ट। तो खाली सिलेंडर, लेस वेट इज ऑलवेज ओके टू गेट एन इंजरी विद अ हैवी वेट। करेक्ट। यस यस, चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं। जी सर। Very good. Let's get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So
ओके, वेरी गुड एक्सरसाइजेज विथ योर किड। बट वर्कआउट ऐसा कुछ है। मैं वापस बताना चाहूंगा कि हमारे जो जूम पे दर्शक है और हमारे फेसबुक पे साथ जो हमारे स्पेक्टेटर्स है, प्लीज टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द किड। दिस इज ओनली एज एन एग्जांपल, नॉट टू बी फॉलोड। आपके साथ आपके घर में जैसे पहले विकास सिंह सर ने जो बताया है, वो चीजें जो आपके पास हो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चों को फिटनेस फ्रीक बनाने के लिए आपको इंस्पिरेशन बनना है। You don't have to use the kids. It is just for your engaging purpose we are showing you. We do not claim that you should do this. Right, Correct. नीरव सर? करेक्ट, सही है सर। यस, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम बहुत कम है। जी, आगे बढ़ते हैं। तो विकास सर, ये जो था वो मेरा रूटीन वर्कआउट था, क्योंकि मुझे उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है उस किड को। सर लास्ट में मैंने कुछ आपके सेंटेंस कुछ थे, वो नेवर, एडवाइस और क्या था वो? एक्चुअली वो मेरे थॉट्स हैं, और मैं आई स्ट्रांगली बिलीव दैट चिल्ड्रन विल फॉलो योर फुटस्टेप्स, दे विल नॉट लिसन टू योर एडवाइस। एंड स्पेशली आफ्टर 1999 और 2000 के बाद जो भी हमारे बच्चे अभी हमारे साथ रूटीन वर्क में, हमारे रूटीन एक्टिविटीज में आ रहे हैं, दे विल नॉट फॉलो आवर एडवाइस। हम लोग इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। जी सर, प्लीज शेयर। 2015 में आई वाज कंपीटिंग इन अ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मिस्टर अहमदाबाद। करेक्ट। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा कि आई वाज कंपीटिंग विद माय स्टूडेंट ऑन द सेम स्टेज। मतलब आप सोचिए, स्टूडेंट और टीचर एक स्टेज पर एक ही उसके लिए लड़ रहे थे। तो स्टूडेंट का नाम था कैजाद दस्तूर। आई मस्ट कि आप सब जानते होंगे। वेरी वेल, आई थिंक दीपसा ऑल नोज वेरी वेल। तो मतलब आप सोचिए कि बच्चे हमसे कितने इंस्पायर होते हैं। एक स्टूडेंट था देव देसाई करके, ही इज वन ऑफ द ओनर ऑफ द जिम इन द अहमदाबाद। ऐसे बहुत सारे, अर्जुन अमीन भी है, एक स्टूडेंट था हमारा, वो भी फिटनेस फ्रीक। मतलब दे आर लर्निंग फ्रॉम द टीचर्स। मतलब उनको हमसे देख के ऐसा लगता है कि नहीं, वी शुड आल्सो हैव टू बी फिट। हमारी लिविंग के लिए तो हम अर्निंग तो हो ही जाएगी, बट जब अर्निंग का हमारे फिटनेस को जरूरत है उसकी क्या है ना, तो फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। शरीर स्वस्थ, जैसे मैंने पहले कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी काम करने के लिए हमारा फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। सर आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ। मैंने भी यही चीज पर्सनली महसूस की है, क्योंकि खेल महाकुंभ कंपटीशन जो भी होती है उसमें, और खास करके प्राइवेट टूर्नामेंट जो भी होती है उसमें, हमारे ही बच्चे, अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे साथ में हमारे सामने वाली टीम में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब कोई एक बच्चा अपने गुरु के पास से, अपने टीचर के पास से सीख के वही स्किल उसके सामने जब आजमा रहा है, वही टीम स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स उसी के सामने दे रहा है, तब हमारे लिए वो हारना भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना जीतना। और हारने में भी मजा है, क्योंकि हमारे बच्चों के पास अगर हारना, उनके सामने अगर हम हारते हैं तो इट इज व्हाट आई थिंक, मतलब इससे बड़ा कोई रिवार्ड ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आवर टीचिंग इज वर्थ। करेक्ट। दूसरा एक फिल्म का सुपर ही डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आप लोग गुरु हो, आप लोग शिक्षक हो, अगर बच्चे आपसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं, तो वो आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है कि आप उनको जीतने के लिए काबिल बनाते हो और जीतते हुए देखते भी हो। तो जो स्पोर्ट्स फ्रीक पर्सन होते हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स की जो एक स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। और वो अब जब हम सब में आ जाएगी, तब हम अपने जिंदगी के भी बाजीगर बन जाएंगे, क्योंकि हम फिट हैं, हम हार के भी जीतते हैं और जीतते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। अगर ऑडियंस में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो उनका आंसर हमारे पास, हम ट्राई करेंगे देने के लिए। Navya Gupta is saying please play the video once again. No Navya, we cannot play the video once again. बच्चों के साथ ये सिर्फ आपको इंस्पिरेशन देने के लिए था वीडियो। आप अपने घर पे जो भी अवेलेबल चीजें हैं उसका इस्तेमाल करिए। जो दूसरे क्वेश्चंस हमारे जूम पे जो आए हैं, बाइसेप एक्सरसाइज बता दिया ऑलरेडी। सिलेंडर के लिए, अरे विकास सर आपका सिलेंडर एग्जांपल तो सुपर हिट रहा। मैं वापस मेरे सभी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, खाली सिलेंडर होना जरूरी है, बट आप सिलेंडर पे पहुंचो उसके पहले जो बाल्टी है उसमें पानी भर के करो। सर एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है। आप सिलेंडर ना उठाएं, आप जो चावल की जो बोरी होती है 25 kg की, अगर आपको हैवी उठाना, यू कैन लिफ्ट दैट वेट आल्सो। जो राइस बैग होता है, चावल की बोरी की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि वो जब हम ऑर्डर देते हैं तब तो मजदूर को बोलते हैं कि तुम हमारे घर में स्टोर रूम तक दे के आ जाओ।
तो वो चावल की बोरी हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक भी हम खुद नहीं लेके आते हैं। Sir, I'm बट not आपने talking. बट आपने Sorry, अच्छा sir. एग्जांपल दिया है, आपने अच्छा एग्जांपल दिया है दैट जी वो फिटनेस रखने के लिए एटीट्यूड होना जरूरी है। तो बिल्कुल सही। फिटनेस के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर चावल का गेहूं का ऑर्डर देते हैं और मजदूर उसको उठा के लेके हमारे स्टोर रूम तक रखता है, तो वो भी एक 5 मिनट का एक्सरसाइज अगर हम कर ले तो भी हमारे बॉडी को फायदा होता है, और साथ में वो मजदूर को भी फायदा होता है कि उसकी थोड़ी मजदूरी हमने कम की। अगर ये एटीट्यूड रखेंगे तो हम फिटनेस 24/7 का मंत्र जीते रहेंगे और जीने में मदद रूप होता रहेगा हमारे जी साथ। करेक्ट सर, यस, परफेक्ट, सही है। हमारे और फेसबुक पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा भी बोल रहे हैं, और थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे Thank you लोग very हैं। much. वेल सेड ट्रूली, बिकॉज सर नाइस वे थिंग्स आर अवेलेबल एट होम एंड एक्सरसाइज। यस, एक हरप्रिया मिश्रा पूछ रहे हैं, सर सजेस्ट सम एक्सरसाइज फॉर किड्स एज किड्स आर नॉट गोइंग टू प्ले, नो फिजिकल एक्टिविटीज दिस डेज। ये हमारे फेसबुक पे क्वेश्चन आ रहा है हरप्रिया मिश्रा कि बच्चे आजकल जो घर पे हैं, ना स्कूल जाते हैं, ना स्पोर्ट्स ग्राउंड में जा सकते हैं, ना जिम में जा सकते हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो फिर भी वो कैसे फिट रहे? विकास सिंह सर, विकास नीरव सर। सर। सर बच्चों का क्या है, एनर्जी से भरे होते हैं, तो हमको कुछ ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करनी जिसमें जंपिंग हो, प्ले के साथ आपकी रनिंग हो जाए, जॉगिंग हो जाए, इधर से स्टेयर्स में अप डाउन हो, या किसी को पकड़ना हो, छुपना हो। तो उसमें क्या बच्चों का माइंड के साथ साथ बॉडी भी रहेगा, ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ेगा, और खेलना भी हो जाएगा। करेक्ट। जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप टेंट बनाओ, एक इस कमरे में छुपो, एक उस कमरे में छुपो, या जंपिंग एक्टिविटी करो, हम उनके साथ मार्चिंग करते हैं, तो वी शुड इन्वॉल्व अवरसेल्फ विद देम। अगर हम ऐसा कि हम अपना काम करें और बच्चे अपने एक्टिविटी करें, ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू इन्वॉल्व अवरसेल्फ विद द स्टूडेंट्स। हम बच्चों के साथ खुद जंपिंग करें, कुछ थोड़ा पंचिंग, मतलब एयर पंचिंग करें, कि मस्ती करें, तो उनकी जो एनर्जी लेवल है दे कैन बी कम डाउन। अदरवाइज अगर आपने बोला कि आप अपने एक्सरसाइज करो और हम लोग अपना अंदर टीवी देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। बच्चों को हम छोड़ नहीं सकते खाली। Correct. I also suggest, because the same thing which you have shared. I also prefer terrace is the best option. And if you are having personal garden or society garden, that is also good. बच्चों को लेकर आप वहां पे जाइए, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए कोई भी टेरेस पर, या तो अपने घर में अगर इतनी जगह है तो आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए। मैं सभी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर जब तक उनको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करोगे, आप अपना इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज के अंदर नहीं दिखाओगे, तब तक दे विल नॉट फॉलो, 110% दे विल नॉट फॉलो। और यही थीम के ऊपर डीपीएस भोपाल के ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं और विकास सर, हम लोग स्कूल के स्टार्टिंग से लेके आफ्टरनून में छुट्टी तक हम लोग ग्राउंड पर ही मिलते हैं। तो हमारा काम यही होता है कि बच्चों को कैसे भी करके कोई ना कोई एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखे। अब उसमें हर एक के अलग अलग पार्ट, हर एक गेम का एक पार्ट होता है। अब कैसे कौन सी एक्टिविटी उनको कैसे समझानी है और कैसे प्रैक्टिकल करवाना है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी शेयर किया था, दे विल ओनली फॉलो द फुटस्टेप्स। उनको बताना पड़ेगा कि आपकी एक्टिविटी करो। मैंने देखा है एक सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में काफी सारे बच्चे टेरेस पर साइकिल चलाते और बहुत सेफ है। इवन गार्डन में भी वो लोग सोसाइटी में साइकिल चलाना जानते हैं और वहां पर जाते भी हैं पेरेंट्स की निगरानी के अंदर। हेलमेट वेलमेट एकदम परफेक्ट अपने इक्विपमेंट लेकर वो जाते हैं, और रूटीन मास्क लगाकर अपनी सेफ्टी करके हैंड सैनिटाइजर साथ में साइकिल में रख के वो लोग अपनी एक्टिविटीज करने जाते हैं। अगर हम लोग उनको प्रेशर नहीं करेंगे कि घर से बाहर निकलो, तब तक वो टीवी नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, लैपटॉप नहीं छोड़ेंगे। तो आई स्ट्रांगली प्रीफर, आई स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ देम, दोज हु आर वाचिंग अस लाइव, कि आप अपनी एक्टिविटीज खुद डिजाइन करो। पूरा घर 110% आपके पीछे लगेगा। ये आप सब लोग एक साथ मिलकर घर की एक्टिविटी डिजाइन करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा उनमें सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बट मैं वापस बताना चाहूंगा कि टेरेस पे करो या बालकनी में करो, या हमारे जो वरांडा होता है उसमें करते हो या गार्डन में करते हो, सेफ्टी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे जो छोटे होते हैं उनको अकेला मत भेजिए, साथ में कोई एडल्ट जाना जरूरी है। या फिर बेस्ट ऑप्शन इज, जो लॉकडाउन पीरियड है, अभी की सिचुएशन है जहाँ पे कम लोग बाहर जा सकते हैं, तो ड्राइंग रूम में सब फर्नीचर को सेफली साइड में रख के ड्राइंग रूम में family can spend 20 minutes 30 minutes all together in the morning or in the evening
before the meal time, and they can spend a good exercise hour with each other. Correct. बट हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है, हमें हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। जिस टेरेस पे पॉसिबिलिटी है वहां पे जाइए, वरना घर पे रहिए। जिस गार्डन में पॉसिबिलिटी है वहां पे जाइए, वरना घर पे रहिए। या फिर जब लॉकडाउन और वो सब परिस्थिति से जब हम बाहर आ जाएंगे, तब जो सेफ और सिक्योर जिम है वहां पे आप बच्चों को भेज सकते हैं, या जिस जगह पे ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स आते हैं वहां पे आप भेज सकते हैं। फिटनेस के लिए मैं एक क्वेश्चन में अपने आप पूछना चाहूंगा, नीरव सर, विकास सर, आप उसका जवाब दे जी सकते सर। हैं। फिट रहने के लिए यंगस्टर्स में अभी एक फैशन बन गया है कि मैं तो जिम जा रहा हूँ। अब जिम जाने के बाद वो सच में एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं? क्या वो ट्रेनर्स सच में उसका साइंटिफिक आंसर देते हैं या नहीं देते हैं? चलो जी। बहुत अच्छा है, 10 साल पहले ये फैशन नहीं था, 10 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था। आज बहुत सारे यंगस्टर्स हमें सुबह सुबह मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन डाइट पे हूँ, मैं फ्रूट डाइट पे हूँ। बट फिर वही बच्चे शायद हमें कई अलग अलग गलत जगहों पे भी शाम को देखने को मिलते हैं, उनकी फूड हैबिट्स भी गलत पाई जाती है। तो इस चीज का जवाब देके हम ये हमारा सेशन खत्म करना चाहेंगे। यस विकास सर। देखिए सर, मैं फिटनेस फ्रीक को लगभग सब जानते हैं। मैं घर आने से पहले, मतलब आफ्टर स्कूल आवर्स, सीधा जिम जाता हूँ, घर नहीं आता हूँ। पहले वर्कआउट करना है तो करना है। मैंने जिम में देखे लड़के जिम में आते हैं, दे ऑन देयर मोबाइल अपना गाना सुनते हैं, जी। मोबाइल देखते देखते वर्कआउट। जब तक आप वर्कआउट के टाइम पे उस मसल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, उस मसल को वर्कआउट नहीं मिलेगा। मैं जिम जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, कोई हाय हेलो नहीं, कोई सामने से बोलेगा हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, दैट्स इट। 1.5 hour एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज, नथिंग टू डू। अपना वर्कआउट करो, दूसरा सेट खत्म करो, यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। बच्चे आजकल ये मिथ है कि आप प्रोटीन पाउडर ले लो, आपका एक्सरसाइज कम करो, ये करो वो करो, आपकी बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। जी। बॉडी बनना और फिटनेस रखना दोनों अलग अलग चीज है। सिर्फ मसल बड़े होने से कोई बॉडी बिल्डर फिटनेस फिट नहीं रहता है। बड़े बड़े मसल्स वाले भी ऐसे झुक नहीं सकते, हाथ पीछे से दोनों जोड़ नहीं सकते। फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। एग्री सर। लोग बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं खाते, हम वेज खाते हैं तो हमारी बॉडी, ऐसा कोई नहीं, बात नहीं है। आप अपना न्यूट्रिएंट कंटेंट, आप डाइट चेक कीजिए, हाउ कैन यू गेट प्रोटीन फ्रॉम द नेचुरल डाइट। आप दाल खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है। सिर्फ जिम जाने से और ट्रेनर रख लेने से कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता है। कोई, मैंने आज तक कभी कोई ट्रेनर नहीं रखा है, बहुत कोई सही बात है। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता हूँ। सिर्फ अपना प्रोटीन डाइट मेंटेन करते हैं, वर्कआउट ईमानदारी से करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा जो हमें टाइम मिलता है, परफेक्ट स्लीप लेते हैं, एंड दैट्स ऑल। आपको सिर्फ सिंपल चीजें ही Yes, फॉलो sir. करनी होती है। अभी टाइम कम है, 6 बजने को आया है, तो जो बच्चे फैशन के लिए जिम जाते हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि फैशन के लिए मत जाइए। अपने बॉडी को आप ट्रेन करने के लिए जा रहे हो, फिट रहने के लिए जा रहे हो, और साथ में आपकी खाने पीने की आदत, आपकी सोने की आदत, आपके घर की आदत और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सब आदत जब मिलती है तब आप फिट रहते हो। फिट रहने के लिए फैशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विकास सर और नीरव सर के बातों से लग रहा है। नीरव सर अगर 30 सेकंड में आपको जवाब देना है, फिटनेस का मंत्र आपको देना है, तो आप 30 सेकंड में क्या देंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। Sir, fitness means your ability to perform your routine activities in a single daily schedule. If you are having some special activities which you have to perform everyday life with speed, with accuracy, if you can perform in minimum time, that is your fitness. एंड विकास सर, आपका 30 सेकंड फिटनेस मंत्र क्या है? खाओ, मजे करो, एक्सरसाइज करो, रोज एक्सरसाइज करो और सो आराम से, बस। सो खाओ और मजे करो, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मिथ है कि कम खाएंगे तो फिट रहेंगे, और इतना सारा कम खाते हैं, इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं, बट फिर भी जो गम अंदर छुपा के रखते हैं, इस वजह से भी आप फिट नहीं रह पाते हो। तो गम को दूर करो, खाओ, मस्त रहो, सुरक्षित रहो। और हम दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से जो ये वेबिनार आपके पास लेके आए हैं जूम और एफबी के माध्यम से, ये हमारी सीरीज जो चल रही है, पहले हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का सेमिनार किया था, दूसरी बार भी आर्ट एंड क्राफ्ट का किया था, फिर हमने योगा के ऊपर किया था, वो भी फिटनेस का एक जरिया है, फिर हमने डांस एंड म्यूजिक के ऊपर 2 वेबिनार किए, आज वापस फिटनेस के ऊपर वेबिनार किया है। सो हमारा आशय ये है कि हमारे
पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और फेसबुक और जूम के जरिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब अपने आप को अपने लिए सुरक्षित पाए और स्वस्थ पाए, वो हमारा आशय है। आप खुश रहेंगे तभी आपका बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगा, तभी आप जाके जो खा रहे हो वो अंदर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मदद रूप करेगा। इसी वजह से हम अपने आप को पहले खुश रखें और खुश रखने के लिए जितना चीज करनी चाहिए वो सब हमें करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर नीरव वसावड़ा जुड़े, हमारे साथ डॉक्टर विकास सिंह रावत जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पब्लिक स्कूल के हमारे सभी विद्यार्थीगण उनको बहुत चाहते हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड में टाइम बिताना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है कि बच्चे स्पोर्ट्स ग्राउंड में उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, बट वही स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, और उनके पेरेंट्स ये भी रखें कि आज की तारीख में भी दोनों फैकल्टीज 45 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं। क्या हम इतना वर्कआउट करते हैं? क्या हम हमारी हेल्दी लाइफ रखते हैं? हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी है? सो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ के ये वेबिनार का अंत करते हैं। वी हैव टू बी हेल्दी एंड वी हैव टू बी हैप्पी, बट do we want to have a life with healthy and happiness, or do we want to have a lifestyle with healthy and happiness? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप सब अपने आप को सुरक्षित पाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और साथ में एक्सरसाइज जरूर करते रहिए। Thank you very much everybody, all the Thank you, Facebook everyone. friends, Thank you, everyone. all the Zoom friends. Thank you. Do keep watching us on Facebook Live of Delhi Public School. We will come once again after some time, after some days, with some more topics and some more interesting sharings with you. Till then, stay safe, stay home, and follow government rules of lockdown, and keep your family also happy and healthy. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.